Assalamu alaikum. So today we would move on to yet another topic, which is the DC analysis of the bipolar junction transistors, because we have devoted quite a few time on the bipolar junction transistor, where we discussed the physical structure of the transistor, the fabrication as well as its current operation, and various mode of biasing configuration. It is in that continuation that we are going to have this lecture, which will explain how to calculate the basic current gain factors from the output characteristic of a given transistor, bipolar junction transistors, and then we would devote more of this lecture on the actual exercises and problems in calculating and analyzing the various transistors that characterize a given bipolar junction transistor. Where here is a transparency which perhaps is not as that clear, which depicts an NPN transistor, and as I mentioned before, in an NPN transistor the arrow indicates the color flowing out from base to emitter. Here is another transparency which we had used once or twice before, showing the various current components in a bipolar junction transistor and the biasing configuration. For this I am choosing, for this exercise I have chosen an NPN transistor, and as you know, we mentioned that many a times before, even in the case of the silicon diode or whether it is a transistor. Well, this slide number 4 depicts the graphical or in the form of a circuit the operation of an NPN transistor. I have chosen NPN because the current emitted from the emitter region is that of the electron, and I have also taken the bias to be in the middle. Is the common bias common base configuration, because base, as I mentioned before, is in the middle in the device fabrication or in the physical structure of a semiconductor transistor. The base is the middle region of a transistor. So in this case I have taken the common base configuration also. Now, as you would appreciate that there are 3 terminals, therefore we will label 3 current components, i.e. starting from the emitter region. From the base region it will be designated or labeled as IB, and for the collector region it will be labeled as IC. And you also see 2 voltages, one applied between the emitter and base designated as VBE, and the second one in the output circuit designated as VCB. Later on in today's lecture, in the current lecture, I will show you another circuit diagram in which both the input as well as the output circuits current loops will be indicated separately. But this is just a schematic representation how we bias an NPN transistor. In this particular case it is a common base configuration, and I have labeled all the 3 currents flowing in the transistor as well as the 2 voltages in the input and output circuit. Having discussed the biasing, then we can move on, because we are summarizing what we had learned about the biasing configuration of a transistor and also its mode of operation. Now, as we discussed before, if you recall, that the basic or simple principle of a transistor operation, whether it is NPN or PNP transistor, is that the emitter base should be forward bias, and the base collector, that is the output second diode, the output junction between the emitter and collector, between the base and the collector, should be reverse bias. So that allows the forward biased emitter base junction allows us allows the current to flow through the transistor, starting from the emitter, going into the base, and then finally getting collected at the collector region.
On the other hand, we have biased the base collector junction in the reverse mode, thereby in that output circuit, in the second junction, the output junction, there is no flow of current, only the minority carrier saturation current, which is designated later on. You will see it as ICEO, that is the collector base current, ICBO, collector base current in this case, because base is common. The leakage current, that is the minority current. So in the mode of operation, we can define in the output characteristic, because output characteristics are important, because there we plot the output current IC as a function of VCE, and the third parameter being the base current, input base current in the base region, which can be very small, of the order of microampere. So by choosing an input of the order of microampere, we can draw or get a large current IC, which is of the 1,000 times higher or 100 times higher than the collector, than the base current. So IC would be of the order of milliampere. So in a common emitter configuration, and in the forward bias of the emitter base junction, and in the reverse bias mode of the base collector junction, we can plot the output characteristics, which are simply a graph between the output current IC versus the VCE voltage for different fixed values of the base current. And from the output characteristic, we can choose 3 modes of operation of a transistor, which I have listed in this table. And those 3 modes are the active mode of operation for the transistor, in which the output curves are more or less flat. And in this region, in this mode of operation, the transistor behaves as a current device, because the first junction between the emitter and base is forward biased. The second junction between the base and the collector is reverse biased. That's why I have shown it as a red. This is the region in which we will be performing the DC analysis for most of our examples. The other 2 regions, as we mentioned earlier, are the cutoff region and the saturation region. In the cutoff region, again, the base current would be less than the voltage drop of the emitter base diode, so the transistor would appear as if the emitter base junction is reverse biased, and the base collector junction we had already biased in such a way that it is known as the reverse bias junction. Similarly, for the saturation mode, both the junctions are behaving as if they are forward biased. But we will be working for the DC analysis, which is today's topic. For the DC analysis of the transistor, we will be using the transistor in its active mode. This mode is also known as the linear mode, the concept being that the output current characteristics are flat, that is, they do not increase significantly with the increase in the voltage between the collector and emitter, if the collector emitter voltage VCE for a common emitter configuration. Now, as I just mentioned, that we can understand the operation of a transistor and hence define the DC current characteristics by understanding these 2 schematic slides. Slide number 4 gives you a block diagram for a transistor, NPN transistor, in which I had shown the 3 current components as well as the 2 forward biased and reverse biased voltages. Now, if we compare slide number 4 with this slide, then we are in a better situation to appreciate how the biasing is done for a given transistor, and how the transistor operates as a DC linear amplifier. I have used the word DC linear amplifier with reference to our output characteristic, in which the output curves, as I mentioned 2 or 3 times before, are flat. Now let's concentrate on this current slide number 6.
I have drawn a red circle which shows the input circuit. Now in the input circuit is the input circuit is between the base and the emitter. Now this configuration is the common emitter configuration, and as I had mentioned before in some previous lecture, that even though we can have, there are two most commonly used biasing configuration, the common base and the common emitter, but this one corresponds to common emitter because we prefer common emitter configuration because the current gain factor beta, as we had discussed before, is greater than, is positive and can be as large as about 100 or 200. Now coming back to the input circuit again, I have shown a bias VBE, and you would appreciate now that because it is an NPN transistor. Now how do we know this is an NPN transistor? Well, the best way of knowing whether the transistor is an NPN or PNP, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि NP और PNP के हम डिस्टिंक्शन बड़ी आसानी से एरो हेड को देख के कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्लाइड नंबर 6 में आप देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का एरो हेड डाउन है टुवर्ड्स द इमिटर, दैट इज द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बेस टू इमिटर। तो एरो हेड की डायरेक्शन अगर इमिटर की तरफ हो, नीचे की तरफ हो, तो ये NPN ट्रांजिस्टर होता है। अगर एरो हेड की डायरेक्शन इमिटर से बेस की तरफ दिखाया जाए तो वो PNP ट्रांजिस्टर है। तो इस एरो हेड की डायरेक्शन को देख के हमें पता चल सकता है कि ये NPN ट्रांजिस्टर है। हालांकि कहीं मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन we know that this is an NPN ट्रांजिस्टर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि NPN ट्रांजिस्टर हम लें अपनी फर्दर इलस्ट्रेशन के लिए या PNP लें। सिर्फ एक उसूल आपको याद रखना है कि करंट ऑपरेशन के लिए ट्रांजिस्टर में इमिटर बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस करते हैं। तो यही मैंने किया है। इनपुट सर्किट को दोबारा गौर से देखते हैं कि अब आपका इमिटर जो है वो N टाइप है, तो N टाइप को फॉरवर्ड बायस करने के लिए मैंने इमिटर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VBE से कनेक्ट किया है, और बेस NPN ट्रांजिस्टर में P टाइप है, तो P टाइप बेस को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी फॉरवर्ड बायस सर्किट की वो पूरी हो गई, यानी आपने बेस P टाइप बेस को बैटरी की सोर्स VBE की पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट किया हुआ है, और नेगेटिव टर्मिनल को इमिटर के साथ जो कि N टाइप है हमने किया। तो इनपुट आपका सर्किट इज दैट इज द डायोड बिटवीन इमिटर एंड बेस इज फॉरवर्ड बायस, एंड दिस इज योर इनपुट सर्किट। अब इनपुट सर्किट में आपको एक वोल्टेज VBE नज़र आ रही है और आपको दो करंट कंपोनेंट्स IB और IE नज़र आ रहे हैं। अब जाहिर है IB की डायरेक्शन अगर आप कन्वेंशनल तरीके से समझें तो फ्रॉम पॉजिटिव पोलैरिटी, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पोलैरिटी टुवर्ड्स द बेस है, यानी इमिटर से बेस की तरफ इज इनटू द बेस, और इसी तरह आपकी कलेक्टर करंट फ्रॉम बेस टू इमिटर। तो आपको एक लूप नज़र आ रहा है। इनपुट सर्किट को अगर आप एक लूप की मदद से समझना चाहें तो इस लूप में आपके दो करंट कंपोनेंट्स चल रहे हैं, IB and IE, and then back into the negative terminal of the battery. तो यही this is an important slide नंबर 6 के ही सर्किट को लेके आगे चल के हम DC न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जब हम सॉल्व करेंगे उसमें हम DC एनालिसिस में यही किरचॉफ वोल्टेज लॉ एज वेल एज किरचॉफ करंट लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे। अब आप कंसंट्रेट कीजिए आउटपुट सर्किट में। अब आउटपुट सर्किट हमारा कलेक्टर और एमिटर के बीच दरमियान है, जो कि आपको नज़र आ रहा है इस स्लाइड में। तो आउटपुट सर्किट में जो हमारी वोल्टेज है उसको हमने डेजिग्नेट किया है, लेबल किया है एज VCE, यानी कलेक्टर एमिटर के दरमियान जो बाइसिंग आपने लगाई है, एमिटर बीइंग ग्राउंडेड इन दिस स्लाइड। तो इस लूप में, आउटपुट लूप में अगेन आपको दो करंट कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, IE एंड IC। ICE being the common between the two input as well as output circuit में input diode, emitter based diode as well as base collector diode में IE आपकी कॉमन कंपोनेंट है। तो और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस सर्किट में फिर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में देयरफॉर द टू गुड कंपोनेंट्स आर IC एंड IB। दो करंट कंपोनेंट्स IC और IB को लेके हम
डीसी एनालिसिस उस ट्रांजिस्टर की शुरू करेंगे। तो हैविंग अंडरस्टूड द वर्किंग द ऑपरेशन ऑफ दिस particular circuit, which in this case is an NPN transistor biased in the common emitter configuration, तो तीनों चीज़ें हमने इस स्लाइड में, स्लाइड नंबर 6 में शो कर दी हैं, जो आगे चल के, ये स्लाइड आगे चल के हमारे बेसिस बनेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस का, प्रॉब्लम्स, डीसी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो आई हैव शोन यू two distinct distinct current loops, that is the input circuit, forward bias, the output circuit, reverse bias, the input current IB, the output current IC, IE being the common current component between the two current loops. Similarly, I have shown you two voltages which are biasing the two loops. VBE आपके इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रही है, और VCE आपके बेस कलेक्टर जंक्शन को बायस कर रही है। तो अब इस सर्किट को समझने के बाद हम आगे चलते हैं और एक्चुअल वोल्टेजेस का एनालिसिस शुरू कर देते हैं और एक्चुअल करंट कंपोनेंट्स का एनालिसिस शुरू कर देते हैं। इसी सर्किट डायग्राम को अगर आप देखें तो उसको मैं एक सिंपल तरीके से इस तरह भी शो कर सकती हूँ। एक एडिशनल चीज़ मैंने यहाँ आपको दिखाई है, वो ये कि आपकी स्मॉल बेस करंट आपकी स्मॉल है, और इस स्मॉल बेस करंट में जो कि आप सर्व कर रही है एज एन इनपुट इनटू द बेस, आप ड्रॉ कर रहे हैं एक लार्ज करंट कंपोनेंट IC, जिसको, और इसी को मैंने मैग्नीफाई करके लिखा है लार्ज करंट। तो एक और नई चीज़ हमें, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में खुद ब खुद सामने आ रहा है, जो कि मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा जिक्र किया, कि नॉट ओनली आपका ट्रांजिस्टर एज ए करंट डिवाइस ऑपरेट कर रहा है, बल्कि दूसरी चीज़ ये क्या कर रहा है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ DC लीनियर एम्पलीफायर सर्किट, कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस करंट्स को चूज़ कर रहे हैं एज इनपुट IB, जैसे पहले मैंने बताया, ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, और आप सर्किट से लार्ज करंट वसूल कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, और ये लार्ज करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर हैं। तो आपको तकरीबन 100 टाइम्स ज़्यादा करंट मिल रही है, और इस चीज़ को हमने डिफ़ाइन किया था पिछले एक लेक्चर में, DC गेन फैक्टर बीटा, विच कैन बी ऑफ एज लार्ज एज 100 to 200। तो ये चीज़ हमने देखी कि हम एक स्मॉल करंट से एक लार्ज करंट सर्किट में ड्रॉ कर सकते हैं ट्रांजिस्टर ऑपरेशन को अप्रोप्रिएट बाइसिंग करके। तो ये पिछली ही इस स्लाइड की ही एक डिफरेंट वे ऑफ ड्राइंग है कि हम DC करंट और DC वोल्टेजेस को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो न सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिख दी है, आपको रिलेटिव डायरेक्शंस भी NPN ट्रांजिस्टर में रिलेटिव डायरेक्शंस भी आपको नज़र आ रही हैं। वही चीज़ मैंने PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी लिख दी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ज़रूरी नहीं है सारी एग्जांपल्स या एक्सरसाइजेज आपकी NPN ट्रांजिस्टर के लिए बनाई गई हों, कुछ PNP ट्रांजिस्टर के लिए भी हो सकती हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल स्विचिंग फ्रॉम NPN टू PNP इज़ कि एक तो आपकी बाइसिंग पोलैरिटी जो है वो आपको इस तरह चूज़ करनी होगी इमिटर बेस जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन के लिए, कि इमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस रहे और बेस कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस रहे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको इस स्लाइड 8 में नज़र आ रही है कि अब करंट की डायरेक्शंस डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू NPN। दोबारा मैं NPN पे वापस चली जाती हूँ। ये देखिए, इसमें base current IB is into the base and emitter current is downward, and similarly for NPN transistor आप देख रहे हैं कि now the base current is out from the base and emitter current is into the base and collector current is coming out from the collector। तो ये accordingly NPN हो या PNP हो, आपकी चेंज करेंगी बाइसिंग पोलैरिटीज डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिस्टर, NPN है या PNP है, और इसी तरह आपकी करंट कंपोनेंट्स, 3 करंट कंपोनेंट्स IC, IB और IE की करंट डायरेक्शंस भी बदल जाएंगी। इसलिए मैंने आपको दोनों स्लाइड्स NPN और PNP दिखा दी हैं कि आप न सिर्फ उनके
मैग्नीट्यूड्स के बारे में कंसर्न हो, बल्कि उनकी रिलेटिव करंट डायरेक्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। टू मेंशन वंस अगेन, हम ये बता दें कि करंट की कन्वेंशनली पॉजिटिव करंट उस डायरेक्शन में चूज़ की जाती है जो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ओरिजिनेट हो रही हो, तो वो हम पॉजिटिव डायरेक्शंस ले लेते हैं। और पी टाइप, अगर एमिटर आपका पी टाइप हो तो वो करंट ऑटोमेटिकली फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ से पॉजिटिव करंट्स की डायरेक्शन चूज़ की जाएंगी। तो अगेन पीएनपी को आप देख लें, और पहले हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर देखा था। अब हम आगे चलते हैं और एक्चुअल डीसी एनालिसिस की तरफ आते हैं कि हाउ अ गिवन ट्रांजिस्टर कैन बी एनालाइज्ड, यानी उसके ऑपरेशन को हम, करंट ऑपरेशन को किस तरह समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दीज 3 current components and 3 voltages existing between a transistor. Okay. तो मैंने क्या लिखा है कि DC analysis of the transistor circuits involves solving for all the currents and voltages in the circuit. तो हमने पिछले 3-4 सर्किट जो देखे उसमें मैंने सिर्फ 2 ही वोल्टेजेस का जिक्र किया है, एक इनपुट सर्किट में एमिटर बेस डायोड में, और दूसरा आउटपुट सर्किट में विच इज़ दी बेस कलेक्टर डायोड, और 3 करंट कंपोनेंट्स का जिक्र किया था क्योंकि ट्रांजिस्टर में 3 ही टर्मिनल हमने दिखाए हैं, द इमिटर टर्मिनल, द बेस टर्मिनल एंड द कलेक्टर टर्मिनल. And the 2 parameters which are interesting to characterize the transistor are the IC and IB and VCE. अगर हम सिर्फ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को पर कंसंट्रेट करें तो 2 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट IC with respect to as a function of the voltage across VCE for fixed values of IB. तो पॉइंट नंबर 2 में मैं क्या लिख रही हूँ कि 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हैं हमारे आज के DC एनालिसिस में of the transistor circuits are IC and VCE for fixed values of IB. And then we had also defined in our load line concept, जब हमने PN junction में load line का concept पढ़ा था, तो अभी मैं चल के आपको फिर दिखाऊंगी आगे कि load line क्या होती है. Load line is a superposition of a straight line on your output characteristic. तो जहाँ पर आपकी एक्चुअल डायनेमिक ट्रांजिस्टर की कर्व्स का और लोड लाइन का इंटरसेप्ट आता है, तो उसको हम कहते हैं द क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट देयरफॉर आपको देता है किसी भी ट्रांजिस्टर का IC और VCE. तो IC और VCE आपके ट्रांजिस्टर के वो 2 कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर हैं कि जिनसे कि आप ट्रांजिस्टर को ऑप्टिमम तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ DC लीनियर एम्पलीफायर और एज अ DC डिवाइस. The first step in the DC analysis of any transistor circuit is to solve for one of the unknown currents. अब आपको एक इनपुट करंट तो आपको पता होती है because you yourself choose the magnitude of the forward biasing in the input circuit which is between emitter and base. तो अगर हमें VBE यानी इनपुट सोर्स की वोल्टेज का मैग्नीट्यूड पता है तो we know by using an appropriate resistor in the input circuit we can calculate IB. तो जब हमें IB पता है तो फिर हम IC भी निकाल सकते हैं और IE भी निकाल सकते हैं. तो ये तीनों पैरामीटर करंट कंपोनेंट्स IB, IC एंड IE हम किरचॉफ करंट लॉ लगा के किसी भी लूप में कैलकुलेट कर सकते हैं. इसी तरह हम आउटपुट सर्किट के लिए भी करंट किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं और फिर सेम वी कैन डू फॉर द वोल्टेजेस. तो इस तीनों इस एनालिसिस को यानी इस तरीके से जो हम वैल्यूज़ ऑफ DC करंट वैल्यूज़ एंड DC वोल्टेजेस वैल्यूज़ निकालते हैं, इस पूरे एनालिसिस को मैंने टाइटल दिया है DC एनालिसिस ऑफ द ट्रांजिस्टर सर्किट्स. सो फार आपने नोट किया होगा कि मैं DC पे एम्फसाइज कर रही हूँ क्योंकि अगले लेक्चर्स में जाके हम AC सिग्नल्स, AC इनपुट सिग्नल्स एंड देयरफॉर AC
आउटपुट सिग्नल्स की भी बात करेंगे। बट सो फार हमने अपने लेक्चर्स में बाइसिंग को, ट्रांजिस्टर बाइसिंग को रिस्ट्रिक्ट किया है। ओनली फॉर डीसी वोल्टेज सोर्स हमने इस्तेमाल किए हैं ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में, तो उसी मुनासबत से हम इसको ट्रांजिस्टर का डीसी एनालिसिस कह रहे हैं। वंस अगेन आई हैव ट्राइड टू शो यू अ डिफरेंट सर्किट नाउ, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि चाहे एनपीएन हो, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हो या पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि आपने इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड रखना है, तो पोलैरिटी आपको उस हिसाब से कनेक्ट करनी पड़ेगी बेस के साथ और इमिटर के साथ। लेकिन दूसरी चीज़ जो डिफरेंट हो जाती है, जिसका आपको ख्याल करना है डीसी सर्किट एनालिसिस में, वो है रिलेटिव डायरेक्शंस ऑफ द करंट कंपोनेंट्स आईबी, कि आईबी की डायरेक्शन क्या है, आई की डायरेक्शन क्या है विद एंड आई सी की डायरेक्शन क्या है रिलेटिव टू ईच अदर। तो इस सर्किट में मैंने वो डायरेक्शंस भी दिखाने की कोशिश की है। अगेन विद द एरोहेड, बाय लुकिंग एट द एरोहेड आई कैन टेल कि अब मुझे मालूम है कि एरोहेड डाउनवर्ड है, टुवर्ड्स द इमिटर है, और इमिटर को मैंने ग्राउंड किया हुआ है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एरोहेड से देख के मुझे ये पता चल गया कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और आपको करंट लूप एंड वोल्टेजेस नज़र आ रही हैं कि VBE इज़ द वोल्टेज बिटवीन IE एंड IB एंड VCE इज़ द वोल्टेज बिटवीन VCE। तो इन लूप्स को हम अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ लगाएं सर्किट लूप्स में, इनपुट एंड आउटपुट, तो हम फिर इस तरह डीसी एनालिसिस की मदद से आप वेरियस करंट्स किसी ट्रांजिस्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं। So in a basic transistor circuits we have three, as I mentioned before, three terminals, the collector and the base and the emitter, and correspondingly हमारे पास तीन voltages VBE, VCB and VCE हम इनको designate करते हैं। इसी तरह three transistor DC currents हैं, IB, IC and IE। I have been talking about only two voltages in the input circuit and the output circuit। the third voltage का मैंने deliberately जिक्र नहीं किया था, लेकिन वो जिक्र खुद ब खुद आ जाएगा जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो तीन करंट्स हैं आपके पास, क्योंकि तीन आपके टर्मिनल्स हैं एंड तीन आपकी वोल्टेजेस हैं इन द थ्री नोड्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये एक ट्रांसपेरेंसी है जिसमें बॉटम में मैंने एक बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन दिखाई है किस चीज़ की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, कि अगर आपके पास किसी सर्किट में दो वोल्टेजेस V1 और V2 लगी हों तो आपकी टोटल वोल्टेज जो है वो दोनों का सम होगी, और उसको मैंने VA कहा है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस in a closed loop is equal to 0। तो इसको टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव पोलैरिटी, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ मैंने दोनों की पोलैरिटी आप देखिए एरोहेड से दिखाई है, लूप में एरोस से दिखाई है। दे आर कनेक्टेड इन द सेम वे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे की पोलैरिटी के साथ इनकी पोलैरिटी सेम है, सो वी कैन न्यूमेरिकली ऐड दम टुगेदर। तो आपकी टोटल एनोड वोल्टेज VA, अगर हमने दो वोल्टेज ड्रॉप्स दिखाए हैं V1 V2, तो टोटल वोल्टेज आपकी होगी VA। नाउ टॉप पॉइंट में, टॉप लाइन में इस स्लाइड की मैंने क्या लिखा है कि अगर हम तीन करंट कंपोनेंट्स अगर हमारे पास हों IC, IB एंड IE, अगर हमें उनमें से एक नोन हो, जो कि नॉर्मली होता है क्योंकि आपकी इनपुट बेस में कंट्रोल हो रही होती है इनपुट सर्किट की वोल्टेज VBE से, तो VBE की अमाउंट को हम खुद मैनिपुलेट कर सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टर लगा के सर्किट में। अगर आप वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा दें और साथ में एक बेस के साथ रेजिस्टर भी कनेक्ट कर दें, तो आप बेस में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर आप बेस में इनपुट के तौर पे डाल सकते हैं। तो अगर IB आपको नोन है, अगर आप IB चूज़ कर लें एक फिक्स वैल्यू,
तो फिर बीटा जो कि गेन फैक्टर पिछले हमने लेक्चर में डिफाइन किया था, बीटा इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, यानी बीटा मैथमेटिकली वी कैन राइट इज इक्वल टू IC ओवर IB। तो इस तरह अगर IB हमें मालूम है और बीटा नोन है ट्रांजिस्टर का, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बीटा अमूमन जो ट्रांजिस्टर की डेटा शीट्स होती हैं उन पे लिखा हुआ होता है। तो फिर हमने क्या चीज़ कैलकुलेट कर ली, IC। तो IB हमें गिवन था, बीटा हमें गिवन था, IB हमने खुद सिलेक्ट किया बाय अप्लाइंग एन अप्रोप्रिएट बायस इन द इनपुट सर्किट। तो IB हमने कंट्रोल किया अपनी मर्जी से वोल्टेज की मदद से। बीटा लिटरेचर में गिवन था, तो IB और बीटा के बाद हमने IC निकाल लिया। जब IC निकाल लिया तो तीसरा अननोन आपके पास सिर्फ IE रह गया, क्योंकि जैसे पहले मैंने बताया, लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड अगेन, कि 3 हमारे पास करंट कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या? IB, IC और IE। तो मैं IB की मदद, IB मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, फिक्स कर सकती हूँ। IC में IV कैरेक्टरिस्टिक से Q पॉइंट से भी निकाल सकती हूँ। तो बीटा हमें नोन है, तो IC और IB हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर जब आपके पास किरचॉफ करंट लॉ लगे तो फिर आप IE जो कि तीसरा अननोन है उसको भी निकाल सकते हैं। यही मैंने पॉइंट 1 में लिखा है कि if we solve for one of these unknowns, the other 2 can be found by using the current gain equations and the given value of beta using Kirchhoff current law in a given loop, चाहे वो लूप इनपुट सर्किट का हो या आउटपुट सर्किट का हो। तो आगे चलते हैं। ये अब वोल्टेजेस के लिए एनालिसिस आ गया। पिछली ट्रांसपेरेंसी में मैंने आपको एक सिंपल प्रिंसिपल बताया था कि ये 2 स्टेप्स हैं, आप जहन में रखें, ये 3 स्टेप्स कह लें कि आपके पास गिवन वैल्यू पता होनी चाहिए IB की एंड बीटा की, फिर आपके पास एक IB और बीटा नोन है, फिर आपके पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन मौजूद है, फिर आपके पास किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन मौजूद है। तो ये 3 मैथमेटिकल टूल्स आपके पास मौजूद हैं। अब इन 3 चीज़ों को लेके हम आगे चलते हैं और एक्चुअल करंट एंड वोल्टेज एनालिसिस को अप्लाई करते हैं किसी ट्रांजिस्टर के लिए। एक चीज़ याद रखिए जो मैंने टॉप पॉइंट में लिखा है, और अगेन मैंने इस सर्किट सिंबल में दिखाया है कि इमिटर बेस डायोड जो है, इमिटर और बेस के बीच में जो सिलिकॉन डायोड है, इस केस में NP डायोड है। द NP डायोड या PN डायोड इमिटर बेस के बीच में जो है, उसमें डायोड का अपना एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और सिलिकॉन के केस में नॉर्मली आई हैव ऑलवेज कोटेड दिस वैल्यू टू बी 0.7 एट रूम टेम्परेचर। तो 0.7 वोल्टेज ड्रॉप हो गया डायोड के अक्रॉस। और अब मैंने एक नई चीज़ आपको दिखाई है इस सर्किट में। इनपुट सर्किट में मैंने एक रेजिस्टर चूज़ किया है RS। बाज़ लिटरेचर में, बाज़ बुक्स में, टेक्स्ट बुक्स में इस बेस के साथ या बेस से पहले जो रेजिस्टर लगा होता है उसको उसी मुनासबत से RB भी कहते हैं, यानी बेस रेजिस्टर। और आउटपुट सर्किट में जो रेजिस्टर मैंने लगाया है उसको नॉर्मली लोड रेजिस्टर कहा जाता है। लोड इस मुनासबत से कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो लोड बेस इनपुट लूप में रेजिस्टर RS मैंने एक इंट्रोड्यूस किया है। इसकी वैल्यूज़ आगे चल के हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ चूज़ कर लेंगे जब हम कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या एक्सरसाइज कैलकुलेट करने लगेंगे। नाउ अब मैंने 2-3 और नए सिंबल इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले मैं सिर्फ वोल्टेज VBE का जिक्र करते आई थी। VBE एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप है इमिटर बेस डायोड के जंक्शन के बीच में, जो कि मैंने लिखा है कि 0.7 है। VBB अब मैंने सिंबल यूज़ किया है, टर्मिनोलॉजी यूज़ की है सोर्स बायसिंग वोल्टेज की, बायसिंग बैटरी की आप कह लें। तो ये वो वोल्टेज सोर्स है जो कि इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर रहा है। तो अब आप कंसंट्रेट कीजिए तीनों वोल्टेजेस पे।
तो VBE इज द वोल्टेज बिटवीन इमिटर टू बेस। अब इसकी पोलैरिटीज़ क्या होंगी, ये आपको चूज़ करनी होगी कि कौन सा जंक्शन कौन सा रीजन हायर पोटेंशियल पे है और कौन सा रीजन लोअर पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो हम देख रहे हैं कि कलेक्टर को आपने कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल से, और कलेक्टर क्या है, मैंने टॉप पे ब्लू इंक से लिखा हुआ है, इट इज़ एन एन रीजन, एन टाइप रीजन। सो कलेक्टर बीइंग एन टाइप रीजन, तो अगर एन टाइप कलेक्टर को आप VCC बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो ये जंक्शन को क्या बना देगा, रिवर्स बायस। इसी तरह हमने बेस को कनेक्ट कर दिया है अनदर पॉजिटिव से। तो अब आप थोड़ा सा परेशान होंगे कि कलेक्टर भी पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हुआ है और बेस भी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। गौर से देखिए, बेस को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VBB से कनेक्ट किया है और कलेक्टर को मैंने बैटरी के अगेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC से कनेक्ट किया हुआ है। तो फिर ये रिवर्स बायस कैसे हुआ? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने एक शुरू की ट्रांसपेरेंसी में ये भी आपको बताया था कि हमें बायसिंग के रिलेटिव मैग्नीट्यूड को भी देखना है। तो वो क्या है इस केस में कि कलेक्टर इज हायर नेगेटिव, collector is getting a relatively higher negative potential and base is at a relatively lower positive potential. तो collector हमारा हायर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और बेस लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, तो दैट मेक्स इट अ रिवर्स बायस जंक्शन। अब इमिटर यहाँ पे दोनों बायसिस, दोनों सप्लाईज वोल्टेज सोर्स के बीच में कॉमन है। VBB भी कनेक्ट हो रहा है इमिटर को टर्मिनल के साथ और VCC भी कनेक्ट हो रहा है इमिटर टर्मिनल के साथ, लेकिन एक्चुअल वैल्यू VCE, VCB और VBE की क्या होगी, जैसे मैंने अभी बताया कि वो आपको रिलेटिव पोलैरिटीज़ देख के कैलकुलेट करनी होगी। तो इस सर्किट में मैंने दो चीज़ें ज़्यादा डाल दी हैं पिछले सर्किट्स की निस्बत, स्लाइड नंबर 6 की निस्बत एंड 4 की निस्बत, जो कि सिंपल बेसिक ट्रांजिस्टर सर्किट्स थे। यहाँ मैंने अब दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट आपको नज़र आनी चाहिए, क्या कि अब मैंने वोल्टेज सोर्स, इनपुट वोल्टेज सोर्स एंड आउटपुट वोल्टेज सोर्स, यानी इनपुट फॉरवर्ड बायसिंग एंड आउटपुट रिवर्स बायस को अलग से शो किया है एज विद द लेबल VBB एंड VCC। इसके अलावा आपको क्या नज़र आ रहा है, दो रेजिस्टेंसेस RS इन द इनपुट सर्किट एंड RL इन द आउटपुट सर्किट। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई जिनकी मदद से हम DC पैरामीटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 आपके किरचॉफ करंट लॉ है और वोल्टेज लॉ है, और तीसरा अब ओम्स लॉ आ गया क्योंकि मैंने एक रेजिस्टर भी शो कर दिया अब स्लाइड नंबर 14 में। तो चलें देखते हैं इनपुट लूप में आपके पास कितनी वोल्टेजेस हैं। इनपुट लूप में हमारे पास 3 वोल्टेजेस हैं। सबसे बड़ी वोल्टेज जो हमने खुद लगाई सर्किट में, दी बायसिंग वोल्टेज, फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज VBB। अब ये VBB कहाँ कहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये दो जगह जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, एक वोल्टेज अपीयर की बेस इमिटर बेस डायोड जंक्शन में, इमिटर बेस NP जंक्शन में, और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ रेजिस्टर RS के अक्रॉस। तो वही मैंने लिखा है करंट लूप। इस इनपुट करंट लूप को अगर आप देखें, जहां मैंने पहले एक दिखाया था कि करंट स्टार्ट्स फ्रॉम, मैं इफ़ आई कैन गो बैक टू वन ऑफ माय प्रीवियस स्लाइड्स, तो मैं आप ये देखिए, इसमें इससे पहले भी एक ये सर्किट देखिए, ये सर्किट था जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये वही चीज़ है, यहाँ मैंने सिंपल डायोड की VBE कर दिया है, लेकिन मैंने अब एक एक्स्ट्रा वोल्टेज भी फॉरवर्ड बायस सोर्स वोल्टेज VBB दिखाई है। यहाँ इस स्लाइड पे मैं वापस इसलिए आई हूँ कि आप लूप देख सकते हैं, करंट लूप एज ड्रॉन बाय द रेड लाइन। तो करंट आपके बेस इमिटर जंक्शन में या इमिटर बेस जंक्शन में, करंट आपकी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से इनटू द बेस, आउट फ्रॉम द कलेक्टर एंड देन टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जा रही है। ये हमारा करंट लूप बना किसमें,
इनपुट सर्किट में। इसी तरह आप आउटपुट सर्किट में भी देख सकते हैं करंट को फ्लोइंग। अगेन करंट इज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ये पीछे से करंट आ रही है तो अब इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टर्मिनल से अगेन टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस स्लाइड नंबर 6 को समझने के बाद नाउ वी कैन गो बैक टू वेयर वी वर बिफोर। हम शायद स्लाइड 14 को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ अब आप देखिए कि इनपुट लूप में मैंने वही किया है कि पहले मैं वोल्टेजेस को लिख लेती हूँ। तो 3 वोल्टेजेस मुझे इनपुट लूप में नज़र आ रही हैं। क्या कि VBB, the voltage drop across the resistor RS and the voltage drop across the diode, base emitter diode। तो ये मैंने टॉप पे एक इक्वेशन लिखी। अब VRS इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया। तो चूंकि मुझे मालूम है सिलिकॉन में VBE 0.7 होती है, VBB मुझे नोन है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम खुद से वोल्टेजेस को इनपुट फॉरवर्ड बायस वोल्टेजेस को खुद से फिक्स कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं by using an appropriate value of the resistor। और ये ख्याल रखना चाहिए जो जैसे मैंने पहले डिसिपेशन का, पावर डिसिपेशन का जिक्र किया था कि डायोड में से, इनपुट डायोड में हम बहुत ज़्यादा करंट नहीं गुजार सकते, अदरवाइज़ ये ख़तरा होता है कि हम डायोड को, ट्रांजिस्टर को डैमेज ना कर दें। तो पावर डिसिपेशन का ख्याल रखते हुए हम रेजिस्टर RS की वैल्यू चूज़ करते हैं या रेजिस्टर RB की वैल्यू चूज़ करते हैं। तो फिर आपकी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS कितना हुआ, उसको आप इक्वेशन 1 जो टॉप पे लिखी है उसको रीअरेंज कर लें। तो इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ। सो आई नो माई VBB, आई ऑल्सो नो द वोल्टेज ड्रॉप एमिटर बेस जंक्शन के बीच में कितना, डायोड के बीच में वोल्टेज ड्रॉप है 0.7। तो इस तरह कोई भी रेजिस्टर RS चूज़ करके, रेजिस्टर की वैल्यू ओम्स में चूज़ करके मैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VRS निकाल सकती हूँ। अब इस वोल्टेज ड्रॉप से फिर आगे चल के मैं करंट निकाल लूँगी। अब वही सर्किट मैंने दोबारा लिखा है, लेकिन अब मैं चूँकि सर्किट में IB भी मेजर कर रही हूँ और IC भी मेजर कर रही हूँ फ्रॉम द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, सो आई कैन फाइंड आउट VRS को। अब मैंने बेस करंट IB और रेजिस्टेंस वैल्यू RS के लिख दिया। Base current I can use by connecting, by inserting a current meter in the loop, और voltages across VBE मुझे 2 टर्मिनल बिटवीन द बेस एंड कलेक्टर नज़र आ रही हैं, जैसे कि मैंने राउंड एरो हेड से इंडिकेट किया। तो VRS इज देन given in terms of Ohm's law by knowing the base current flowing into the inputs loop, which is IB into RS। तो अब ये आपको एक थर्ड इक्वेशन मिल गई। तो पहली 2 इक्वेशन क्या थी फ्रॉम द इनपुट सर्किट में? पहली इक्वेशन इज द Kirchhoff voltage law, that is the sum of all the voltages in the loop, input loop must be equal to 0। अब ये गौर से देखिए कि आपको relative पोलैरिटी इस इक्वेशन नंबर 1 की जहन में रखनी होगी कि कौन सी करंट पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव है। अब आगे चलते हैं। तो इसी इक्वेशन नंबर 1 को अब मैंने रीअरेंज करके इक्वेशन 3 की फॉर्म में लिख दिया है। एंड इक्वेशन 3 नाउ इज IB इंटू RS इज इक्वल टू VBB माइनस VBE। अब मैं जाती हूँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस करंट वोल्टेज लूप इन द आउटपुट सर्किट या आउटपुट लूप। तो आउटपुट लूप में आपकी टोटल वोल्टेज क्या है? सोर्स वोल्टेज, जिसको बहुत से टेक्स्ट बुक्स में रेफर करते हैं VCC। तो VCC कहाँ डिवाइड हो रही है? द टोटल वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज कनेक्टेड in the base emitter junction is now being divided between the voltage drop across the load and the voltage drop across the second diode, second junction, जो कि किसके बीच में है? जो कि आपके कलेक्टर और एमिटर के बीच में है। तो ये आपको दोनों वोल्टेजेस VBE और VCE इस पर्टिकुलर स्लाइड नंबर 15 में नज़र आ रही हैं। तो इस तरह हम
अब सेकेंड लूप की जब हम वोल्टेज लॉ केवी वोल्टेज लॉ लिखें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखें, तो वो क्या होगी, वो नीचे बॉटम में आपको दिया हुआ है कि VCC therefore the total supply voltage, the total reverse bias supply voltage VCC is equal to VCE plus ICRL। तो ये हमारे पास आप तीन इक्वेशंस आ गई, one in the input, one in the for the input circuit, input loop, current loop, and second for the output current loop, और थर्ड इक्वेशन आ गई जिसमें हम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RS को करंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फोर्थ इक्वेशन आ गई जिसमें आप वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड आउटपुट सर्किट में आप उसको IC इंटू RL लिख सकते हैं। तो ये चार इक्वेशंस बेसिस प्रोवाइड कर रही हैं हमारे DC सर्किट एनालिसिस की। और अब हम हैविंग अराइव्ड एट दीज फोर इक्वेशंस बाय यूजिंग टू वेरी सिंपल लॉज, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ एंड द ओम्स लॉ, हम ये तीन इक्वेशन लेके अब हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स सॉल्विंग की तरफ आ जाते हैं। तो मैं फिर से समरी करूं, जब मैंने पिछले लेक्चर में जो कि डिवोट किया था सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड DC हाइब्रिड पैरामीटर के या गेन ट्रांजिस्टर गेन फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए वो लेक्चर था। तो उस लेक्चर में हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि ट्रांजिस्टर्स में जो करंट हैं उनकी इनपुट और आउटपुट की रेशियोस लेके हमने कुछ फैक्टर्स डिफाइन किए थे। तो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हमने बीटा डिफाइन किया था, और बीटा को हमने क्या कहा था कि बीटा इज इक्वल टू द आउटपुट कलेक्टर आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय द बेस करंट IC ओवर IB। वो आपको नंबर 2 लाइन में नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हमने कहा था कि अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लें तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपकी इनपुट करंट IE होगी और आउटपुट करंट वही IC रहेगी। तो फिर गेन फैक्टर क्या हुआ, आउटपुट IC डिवाइडेड बाय इनपुट IE, तो वो उसको हमने अल्फा कहा था। बीटा की वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली एज स्मॉल एज 20 एंड क्वाइट लार्ज अबाउट 200 अप्रॉक्सीमेटली हो सकती हैं, और अल्फा की वैल्यू एज यू अप्रिशिएट विल बी maximum value can't exceed than 1, but it is as close to as 0.99। most of the cases में practical ट्रांजिस्टर में अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, but it can be as high as 0.99। NPN ट्रांजिस्टर के लिए सिलिकॉन PN जंक्शन में VBE की वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप 0.7 है, और PNP ट्रांजिस्टर में -0.7 है। ये प्लस और माइनस का साइन सिर्फ ये दिखाने के लिए लिखा है, जैसे मैंने पहले आपको बहुत दफ़ा बताया है कि आपको रिलेटिव वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस देखना होगा बिटवीन इमिटर एंड बेस, कि आपका P की निस्बत अगर P टाइप रीजन के साथ पॉजिटिव पोलैरिटी लगी हुई है वोल्टेज की तो उसको हम पॉजिटिव वोल्टेज कहते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव लगी हुई है तो उसको हम नेगेटिव वोल्टेज कहते हैं। तो बट द मैग्नीट्यूड स्टिल रिमेन्स फॉर सिलिकॉन 0.7। तो ये दो चीज़ें जो कि हमें पहले से, ये दो फैक्ट्स जो कि हमें पहले से, रिलेशनशिप हमें पहले से पता थे, और चूंकि मैंने जिक्र किया कि अल्फ़ा को हम रफली 1 भी ले सकते हैं, इसलिए पहली इक्वेशन में मैंने लिख दिया है कि लेट्स अस्यूम IE और IC रफली सेम है इफ़ द बेस इज़ कॉमन, लेकिन अगर इमिटर कॉमन है बायसिंग में तो फिर बीटा कैन बी वेरी लार्ज। अब इस नॉलेज के साथ हम प्रोसीड कर सकते हैं आगे और अपनी पहली एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। नाउ दिस फर्स्ट एग्जाम्पल शुड गिव यू अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। कि फिर से मैंने एक और सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम आपके लिए चूज़ की है। अब इस केस में हम बायसिंग की कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं। अगेन अगर आप देखिए एरोहेड को तो आपको NPN ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है। पहले भी मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन हम इसलिए चूज़ करते हैं कि जो गेन फैक्टर आप डिफ़ाइन करते हैं, ये सिर्फ डिफ़ाइन करने की बात है। माइंड यू, ये भी एक बात मैं फिर से दोहरा दूं कि जब आप
ट्रांजिस्टर को फिजिकली फैब्रिकेट करते हैं, जो ट्रांजिस्टर का अपना बनावट यानी स्ट्रक्चर होती है, उसमें तो बेस ही कॉमन होता है। एक तरफ आपके इमिटर होता है, दूसरी तरफ आपके कलेक्टर होता है, और बीच में दरमियान में बेस होता है। तो बेस रीजन कॉमन है बिटवीन द इनपुट डायोड एंड द आउटपुट डायोड, अगर आप कहना चाहें, या इमिटर बेस डायोड और बेस कलेक्टर डायोड, तो बेस दोनों में कॉमन आ गया। तो फिजिकली तो बेस कॉमन में है, लेकिन हम बायसेस ऐसे कर सकते हैं कि आप 3 कॉन्फ़िगरेशन उसकी बना सकते हैं बाइसिंग के हवाले से। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि फिजिकली तो बेस ही कॉमन है ट्रांजिस्टर की बनावट में, लेकिन बाइसिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं जिसको फिर हम कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। और ये भी पहले मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम इस्तेमाल होती है नॉर्मल ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में। ज़्यादातर हम कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर करते हैं। अब मैं और कॉमन बेस और कॉमन एमिटर करते हैं। अब मैं कॉमन एमिटर को भी आगे चूज़ कर लेती हूँ, अलग कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी 2-3 दफ़ा बताया कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में फ़ायदा ये है कि हम आउटपुट करंट और इनपुट करंट की जब रेशो लेते हैं, अब आपकी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट क्या बनी? IB, और IB बहुत छोटी मिकदार में होती है, स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं, माइक्रो एम्पियर की। स्मॉल हम कैसे करते हैं कि हम रजिस्टर RS, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया सर्किट में, उसकी अप्रोप्रिएट वैल्यू चूज़ करके, और फॉरवर्ड बायस VBB की वैल्यू भी हम रफली लेस देन अबाउट 1 to 1.5 वोल्ट चूज़ करते हैं, R को भी हम अप्रोप्रिएटली चूज़ करते हैं। तो हम दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन से बेस करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर रखते हैं। क्यों माइक्रो एम्पियर रखते हैं? क्योंकि हम अपने इनपुट सर्किट में बहुत ज़्यादा पावर नहीं गुजारना चाह रहे। तो हैविंग एक्सप्लेन्ड व्हाई am I choosing a common emitter configuration and I'm also choosing NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर भी मैंने आपको बता दिया था। तो 2 चीज़ें यहाँ मैंने आपको बताई। Common emitter configuration is selected, is preferred because the gain factor beta can be as large as 100 or 200. NPN transistor is chosen क्योंकि फिर आपका emitter क्या बना? N type region बना। और क्यों हम emitter को N type ले रहे हैं बनिस्बत P type के? वो इस वजह से कि electron mobility is larger compared to hole mobility। तो अक्सर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में या एक्सरसाइजेस में या डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में आप देखेंगे कि NPN ट्रांजिस्टर इज़ प्रेफर्ड ओवर PNP, इस वजह से कि मीटर N टाइप होता है। N टाइप होने का क्या फ़ायदा है कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हायर होती है बनिस्बत होल मोबिलिटी के। ओके, कॉमन एमिटर क्यों चूज़ किया? कि बीटा फैक्टर ज़्यादा होता है। तो हैविंग चोजन these 2 particular values for the transistor operation, यानी NPN ट्रांजिस्टर ले लिया और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ले ली। लेकिन ये मत समझिएगा कि हमेशा यही नॉर्मल ऑपरेशन होता है। नो, बाय नो मीन्स नो। ये तो सिर्फ एक मैंने आपको एक एस्पेक्ट बताया है कि सिंपल करंट ऑपरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर में हम ये 2 चीज़ें ले लें तो आसानी रहती है। तो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको इनपुट सर्किट दिखाया है, मैंने आपको आउटपुट सर्किट दिखाया है, मैंने NPN ट्रांजिस्टर की अप्रोप्रिएट फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग भी दिखाई है। याद रखिए कि आपका रिवर्स बाइस ज़्यादा बैटरी की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, पावर सप्लाई का, DC पावर सप्लाई का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए बनिस्बत फॉरवर्ड बाइस की बैटरी के, ताकि आपका एमिटर जो है वो रिलेटिवली आपके कलेक्टर को रिवर्स बायस होना है बनिस्बत इमिटर रीजन के। ओके, तो अब हम क्या चाह रहे हैं? मैंने आपको कहा कि हम IB 50 माइक्रो एम्पियर ले रहे हैं, और IC जो मैंने मेजर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से, अभी मैं वो स्लाइड भी आपको दिखाऊंगी, वो है 3.6 मिली एम्पियर। IB इज़ गिवन क्योंकि मैंने वैल्यू ऑफ द बेस रजिस्टर RS और VBB से चूज़ करके एडजस्ट करके सर्किट में मैंने IB मेजर कर लिया। इसी तरह मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करके
IC निकाल लिया फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ VC। ये IC मैं Q पॉइंट से भी चूज़ कर सकती हूँ। तो अब कहा क्या गया है कि आप IE की वैल्यू निकालिए। देखिए, दो करंट का पहले मैंने शुरू में जिक्र किया था कि डीसी ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में डीसी ट्रांजिस्टर के 3 पैरामीटर होते हैं, 3 करंट कंपोनेंट, IE, IB एंड IC। अब 2 गिवन है, तीसरा अननोन कौन सा हुआ? IE। तो हम IE निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास बीटा नहीं दिया हुआ तो आप बीटा DC निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों IB और IC गिवन है। और इसी तरह हम अल्फा DC निकाल सकते हैं। सबके साथ मैं DC सब्सक्रिप्ट इसलिए लिख रही हूँ कि आगे चल के इसी तरह का एक सिमिलर एनालिसिस हम स्मॉल AC सिग्नल्स के लिए करेंगे, जहां आपके बाइपोलर ट्रांजिस्टर इज नाउ given an AC signal biasing is biased with AC signal। तो इसका सोल्यूशन बहुत इजी है। अगेन फर्स्ट लाइन में मैंने क्या किया हुआ है? दी किरचॉफ करंट लॉ लगाया हुआ है। क्या चीज़ याद रखनी चाहिए कि आपको रिलेटिव करंट डायरेक्शंस याद रखनी चाहिए। कन्वेंशनल, अब हमारी पॉजिटिव करंट क्या होगी? IB एंड IC की डायरेक्शन सेम है, IE की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये नेगेटिव होगी। सो करंट लॉ वुड बी IE IB प्लस IC। अब इसमें टोटल वोल्टेज, एक और भी चीज़ देखनी है कि आपकी टोटल करंट IE है वो कहाँ डिवाइड हो रही है? वो बिटवीन IB एंड IC डिवाइड हो रही है। तो टोटल करंट IE इज ए सम ऑफ बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया? IE निकाल लिया, 3.7 मिली एम्पियर। वेरी सिंपल, बाय यूजिंग द किरचॉफ current law I can calculate the third unknown current component, which is IE, and then I also know the ratio of output and input currents beta and alpha, तो वहाँ से मैंने अल्फा एंड बीटा निकाल लिया। दिस वाज द मोस्ट सिंपल example for calculating the transistor parameter beta and alpha for DC currents and DC voltages। यही चीज़ अब मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे दे रही हूँ। देखिए, ये सर्किट डायग्राम वही मैंने चूज़ की है, उसी तरह के सर्किट डायग्राम का राइट साइड पे मैंने एक सॉल्व करके आपको एग्जांपल दी है। अब ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। पिछले केस में मैंने आपको IB और IC दोनों दी थी, नोन थे, मसलन मेजर करके नोन थे, तो हमने बीटा निकालने को कहा। अब इस केस में मैं आपको बीटा दे रही हूँ और एक नोन चीज़ बेस करंट है, बाकी 2 अननोन कौन सी हुई? IC एंड IE। तो आप वो डिटरमिन कर सकते हैं, और जब IE और IC निकल आई तो फिर आप अल्फा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह 3 चीज़ों को, जैसे मैंने बताया, 3 फैक्टर्स को लेके 2 करंट गेन फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा, और 3 करंट कंपोनेंट्स IC IB IE, 2 वोल्टेजेस VBE एंड VCE। तो इन 6-7 फैक्टर्स को लेके आप मुख्तलिफ इटरेशन यानी मुख्तलिफ चीज़ें ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में मुख्तलिफ ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। येट अनदर एग्जाम्पल। अब नोट कीजिए, मैं ऊपर लिख रही हूँ एग्जाम्पल 4.2। नाउ दिस 4 refers to chapter number 4 of the reference that I am using, और ये रेफरेंसेस मैंने 2 कोट किए हैं स्लाइड नंबर 3 में। तो अगर आप स्लाइड नंबर 3 में वापस जाइए तो स्लाइड 2 इज़ शोइंग द कोर्स कंटेंट आज के लेक्चर का, जिसमें मैंने ट्रांजिस्टर ऑपरेशन और DC सर्किट्स शो किए हैं, डिस्कस किए हैं। फिर मैंने डिस्कस करना चाह रही हूँ, अब मैं डिस्कस कर रहे हैं हम वेरियस प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर कैलकुलेटिंग द करंट कंपोनेंट्स एंड वोल्टेजेस एंड द गेन फैक्टर। तो बेसिकली हमारा आइडिया आज के लेक्चर का क्या है कि हम ट्रांजिस्टर के इनपुट और आउटपुट सर्किट्स को अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें विद रिस्पेक्ट टू द करंट्स
that are present in the input and output loop, or also the voltages that we are connecting for forward biasing and reverse biasing, and the voltage drops in the emitter base region and the base collector region. तो ये सब चीज़ें अब हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं. All we have to do is simply use the equations and solve the transistor for DC parameters या DC factors. तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस ट्रांजिस्टर की किस तरह का बिहेवियर है जब आप उसको DC सर्किट्स में यूज़ करते हैं एज अ करंट डिवाइस. तो मैं जिक्र कर रही थी एग्जाम्पल 4.2. वाई डू आई कॉल इट 4.2? तो 4 रिफ़र कर रहा है चैप्टर को of the textbook that I have given in slide number 3, and that is पिछले लेक्चर्स में मैं फ्लॉयड का जिक्र करती रही थी. आज ये मैंने एक्सरसाइजेस सेड्रा एंड स्मिथ से ली हैं, दूसरा रेफरेंस जो मैंने कोट किया है. तो हर लेक्चर में मेरी ये कोशिश होगी कि जिस बुक्स को टेक्स्ट बुक को मैं एज रेफरेंस यूज़ कर रही हूँ, ज़ाहिर है उसकी हर पेज का या हर सेक्शन का मैं रेफरेंस तो नहीं दे सकती, क्योंकि ये लेक्चर्स मैंने डिज़ाइन किए हैं फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स, एंड आई हैव ट्राइड टू कोट द रेफरेंसेस एज ऑफ्टन एंड एज पॉसिबल. लेकिन एज अ गाइडलाइन मेरी कोशिश ये होगी कि हर लेक्चर के शुरू में मैं आपको एटलीस्ट उस टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ज़रूर दूं जहाँ से मेरे ये ट्रांसपेरेंसीज के लिए जहाँ से मैंने मटेरियल सिलेक्ट किया है. तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने चैप्टर 4 से ली है, सेड्रा स्मिथ की बुक से. तो इसमें जैसे मैंने अभी कहा कि सर्किट वही है जो एग्जाम्पल 4.1 में था, एक्सरसाइज 4.1 में आपको दिया था, या एग्जाम्पल तो ये वही चीज़ चल रही है. 4.1 मैंने सॉल्व्ड एग्जाम्पल दी है. अब मैंने उसी एग्जाम्पल उसी सर्किट के लिए एक्सरसाइज कह दिया कि ये आप खुद से सॉल्व करें ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए. दिस इज़ एग्जाम्पल 4.2. इसमें हमने उल्टा किया है. वहाँ हमने बीटा कैलकुलेट किया था, इस एग्जाम्पल में बीटा गिवन है और आप बाकी चीज़ें कैलकुलेट करें. तो वो बाकी चीज़ें क्या हैं? देखिए, बाकी चीज़ें 3 करंट कंपोनेंट्स अब आपको निकालने हैं, IC, IE और IB. प्लीज़ डू इग्नोर दी AC सिग्नल हेयर. जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आप समझें कि ये AC सिग्नल नहीं है. ये एक्चुअली सर्किट मैंने चूज़ किया था जब मैं आगे किसी लेक्चर में जाके AC एम्पलीफायर सर्किट की बात करूँगी तो यही वाली स्लाइड में दोबारा यही सर्किट में दोबारा शो करूँगी. लेकिन यहाँ हम चूँकि सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को DC सिग्नल के लिए, therefore as I have written in this exercise or example that you can simply ignore the AC signal, and the only parameter that I have given is the beta factor and the 2 values for the base resistor RB and the collector that is load RL or RC, which is 2 kilo ohm and 50 kilo ohm. I do apologize that I forgot to put in the symbol ohm, the unit ohm with the resistor, but I do hope that you appreciate that the units for the resistors are ohms. So it's 2 kilo ohm and 50 kilo ohm. So do solve this problem and then we can show what I had been talking about. तो बहुत शुरू में लेक्चर के शुरू में मैंने जिक्र किया था Q पॉइंट का कि IB हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या मोस्ट केसेस में IB नोन होता है क्योंकि हमें इनपुट वोल्टेज VBE नोन है. तो जब हमें IB नोन है तो अक्सर ट्रांजिस्टर्स में बाय प्लॉटिंग दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिस पे मैंने लोड लाइन भी शो की हुई है आउटपुट सर्किट की, मैं वापस चली जाऊँ इस स्लाइड में. ये देखिए, ये एक्चुअली स्लाइड मुझे सर्किट बहुत पसंद है क्योंकि इसमें अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ ऑफ RB और RL लोड या कलेक्टर रजिस्टर RC गिवन है, वैल्यूज़ ऑफ VBB और VCC गिवन है, और आपको रिलेटिव मैग्नीट्यूड भी नज़र आ रहा है. जैसे मैंने शुरू में बताया था कि फॉरवर्ड बायस जो है VBB, उसकी वैल्यूज़ हम अबाउट 1 to 1.5 वोल्ट्स लेते हैं, स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज सोर्स VBB.
जबकि इसके बरक्स VCC ज़्यादा होता है, क्योंकि आप ट्रांजिस्टर को रिवर्स बायस कर रहे हैं, तो आपको डिसिपेशन वहाँ पे आपको ये ख़तरा नहीं है कि आप ज़्यादा फॉरवर्ड करंट गुजार देंगे। तो फॉरवर्ड करंट आपकी पीछे से इमिटर से चलती हुई, बेस से गुजरती हुई कलेक्टर तक पहुंच रही है। सो वी हैव हायर पोटेंशियल, हायर वोल्टेजेस VCC एंड लोअर स्मॉल वोल्टेजेस VBB, और यहाँ मैंने दोनों मैग्नीट्यूड भी दे दिए हैं, 1.6 वोल्ट एंड 10 वोल्ट्स रिस्पेक्टिवली। इसी तरह बेस रजिस्टर में हम बड़ा रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू अलाउ लार्ज करंट्स IB इनटू द बेस, और आपका लोड या कलेक्टर रेजिस्टेंस कम वैल्यू का है, 2 किलो ओम इन दिस केस। इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को लेके हम आगे एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ये कि अगर आपके पास मेजर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट IC नहीं है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ VCE नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम इनको Q पॉइंट से निकाल लेते हैं। तो Q पॉइंट इन अदर वर्ड्स किसी ट्रांजिस्टर का दो चीज़ें आपको देता है, बाय प्लॉटिंग द लोड लाइन, दो चीज़ें आपको देता है, द कलेक्टर करंट एंड द कलेक्टर इमिटर वोल्टेजेस। तो Q पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, किसी ख़ास वैल्यू ऑफ IB के लिए ये हमें ये बताता है कि मोस्ट ऑप्टिमम ऑपरेशन एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर का आप इन दो वैल्यूज़ ऑफ IC एंड VCE के लिए कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर आप वोल्टेज स्विंग, आगे चल के मैं इसी सिग्नल में बात करूँगी कि वहाँ ये कॉन्सेप्ट Q पॉइंट का या लोड लाइन का जो कि हम ड्रॉ करते हैं डायनामिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे, ज़्यादा हमें समझ आएगी कि वोल्टेज स्विंग जो है वो आपकी कितनी हो आउटपुट सिग्नल स्विंग या वोल्टेज स्विंग कितनी हो सकती है। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम एक ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन से लोड लाइन ड्रॉ करके हम किसी ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से या किसी ट्रांजिस्टर का Q पॉइंट निकाल लेते हैं। Q पॉइंट इज सिंपली द वैल्यूज़ ऑफ IC एंड VCE जो कि आपको इस ट्रांजिस्टर में नज़र आ रही हैं, इस स्लाइड नंबर 21 में नज़र आ रही हैं। देन आई सिंपली प्लॉट, ये तो मैंने आपको पूरा लोड लाइन सुपर इम्पोज्ड ऑन द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है। अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि वी ऑपरेट नॉर्मली द ट्रांजिस्टर इन द लीनियर रीजन। अगर आप ट्रांजिस्टर का कोई एनालिसिस कर, सर्किट एनालिसिस चाह रहे हैं कि कितनी करंट्स गुजर रही हैं, कितनी ऑप्टिमम करंट वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या ऑप्टिमम वोल्टेज वैल्यूज़ होनी चाहिए फॉर ए सर्टेन डिसिपेशन पावर ऑफ अ गिवन ट्रांजिस्टर। तो ये अगेन मैंने ड्रॉ किया हुआ है कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये देखिए मैंने टॉप पे भी लिखा हुआ है कि ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक थी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की फॉर अ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ आई हैव not drawn the load line and simply shown you the output characteristic and the Q point. So I write that a transistor's operating point or Q point is defined by the values of IC, VCE and IB. तो आपको इस Q point से तीनों पैरामीटर्स ट्रांजिस्टर के नज़र आ रहे हैं, और इसी मुनासबत से इनको हाइब्रिड भी कहा जाता है कि आप बेस कलेक्टर जो कि प्रॉपर्टी है इनपुट सर्किट की, उससे आप कंट्रोल कर रहे हैं आउटपुट सर्किट की दो प्रॉपर्टीज़ विच इज़ IC for different values of VCE, for some fixed value or different values of VCE. So in this आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को शो कर रही हैं, और तीन पैरामीटर्स कौन से हैं, तीन फैक्टर्स कौन से हैं, IB, IC एंड VCE, और Q पॉइंट तीनों चीज़ों, Q पॉइंट वो है जिसमें आपको ये तीनों क्वांटिटीज़ बैक वक्त मिल जाती हैं इस ग्राफिकल एनालिसिस से। अब ये दोबारा रिवीजन थी, हालांकि हम लोड लाइन का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस लोड लाइन के कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करने के बाद लोड लाइन and the output characteristics are shown in this slide 21. Slide 22 simply explains what Q point is. तो ये दो स्लाइड्स रिवाइज करने के बाद, स्लाइड नंबर 21 एंड 22 को रिवाइज करने के बाद, अब हम
एक्सरसाइज 4.3 पे आ जाते हैं। सो इनफैक्ट मेरा टास्क ये था कि मैं आपको ये प्रॉब्लम दूं, लेकिन उसके लिए मुझे रिवीजन करनी थी, जो कि मैंने की क्यू पॉइंट की रिवीजन करनी थी, जो कि मैंने स्लाइड 21 और 22 में आपको दिखाई। तो उस रिवीजन के बाद अब मैं आपसे कह रही हूँ कि हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है कि मैंने आपको क्यू पॉइंट दिया है, जिसमें क्यू पॉइंट में मैंने आपको IB और VCE दी हुई है, और फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप बीटा AC एंड बीटा DC निकालिए। याद रखें कि मैंने आपको बीटा AC की भी डेफिनेशन दी थी कि उसमें आप स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट एंड एज ड्यू टू स्मॉल चेंज इन बेस करंट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक इनपुट वैल्यू IB नहीं लेनी है, बल्कि 2 डिफरेंट वैल्यूज़ आप चूज़ कर लें। तो ये भी आप कोई भी इस ग्राफ पर आप वैल्यूज़ चूज़ कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम IB इज इक्वल टू 0, और उसके 10 इंटरवल से आप बढ़ाते चले जाएं। एक टेबल अगर आप ड्रॉ कर लें IB का, तो फिर हम इससे मैंने IB आपको दिया हुआ है, तो बीटा की वैल्यू से हम IC की वैल्यू निकाल सकते हैं, और IC से फिर हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉट ओनली DC बट AC ऑल्सो। तो ये एक्सरसाइज आप कर लीजिए, ये भी आपको टेक्स्ट बुक सेदर एंड स्मिथ में आपको ये मिल जाएगी, इसलिए जो वैल्यूज़ यहाँ अपीयर नहीं कर रही आप उस टेक्स्ट से देख सकते हैं। Before I move on to some more numerical analysis, I would like to just take to revise what we have done, and then in the next lecture we will continue with some more exercises by choosing different values of resistances as well। क्योंकि अब तक मैंने जो आपको 3 एग्जांपल्स दी हैं, उसमें मैंने अभी तक बेस रजिस्टर और लोड रजिस्टर सर्किट में नहीं इंक्लूड किया। मैंने बहुत ही सिंपल 3 एक्सरसाइजेस चूज़ की थी आज के लेक्चर के लिए, जिसमें मैंने सिर्फ IB, IC, VCE और VBE और बीटास तक अपने आप को महदूद रखा था। तो अब आप आज के लेक्चर के बाद आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। जस्ट सी हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर in appropriate input as well as output circuits by appropriately biasing it, और हम ये पता समझ लें कि ये ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स क्या होते हैं। Now we would like to present the summary of today's lecture। और टाइटल में मैंने emphasis में क्या चीज़ emphasize की है, the word DC, as I mentioned कि मैंने so far restrict किया हुआ है DC सोर्सेज पर। AC सोर्सेज को हम आगे चल के प्रॉपर एम्पलीफायर सर्किट में डिस्कस करेंगे, AC सिग्नल्स भी यूज़ करेंगे। सो what should we summarize कि नंबर 1 हमने एक्टिव रीजन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को चूज़ किया था आज के लेक्चर के लिए। उसको लीनियर रीजन भी कहते हैं, जिसमें आपके आउटपुट करंट ICs मोर और लेस फ्लैट होती हैं। दे डू नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली while you increase the output voltage VCE। जो स्लाइट इंक्रीज नज़र आता था वो हमने अर्ली इफेक्ट में डिस्कस कर लिया था, और अगले लेक्चर में मैं उसको दोबारा रिपीट भी करूँगी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में एक और फिनोमिनन आपने देखा था, बहुत हाई वैल्यूज़ ऑफ आउटपुट वोल्टेजेस VCE पर जाके ब्रेक डाउन फिनोमिनन भी होता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अर्ली इफेक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्रेक डाउन रीजन। मैं सिर्फ उस रीजन, आज के लेक्चर में मैंने सिर्फ उस आउटपुट रीजन पर रिस्ट्रिक्ट किया है, या उस रीजन की मैं बात कर रही हूँ जहाँ आपकी आउटपुट कर्व्स मोर और लेस फ्लैट थी। तो उस मुनासिबत से मैंने ये टर्मिनोलॉजी लीनियर रीजन इस्तेमाल की है। और जैसे हम हमेशा कहते आए हैं कि किसी भी नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द डायोड में, ट्रांजिस्टर में बेस इमिटर जंक्शन जो है, ये पहला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होता है ट्रांजिस्टर का, और ट्रांजिस्टर का सेकंड डायोड जो कि बेस और कलेक्टर डायोड है वो आपका रिवर्स बायस्ड होता है। एंड देन वी डिस्टिंग्विश, हम 2
लूप्स में पहचान करें, डिस्टिंग्विश करें। एक आपका इनपुट लूप है, दूसरा आपका आउटपुट लूप है। इनपुट लूप में आपके वोल्टेजेस VBE है, आउटपुट लूप में आपकी वोल्टेज VCE है। Third voltage between the collector and emitter, which is VCE, normally we do not use that as a good parameter. और इसके बाद हमने 3 करंट को भी डिफाइन किया था, 3 रीजन्स, 3 टर्मिनल में, द इमिटर करंट एंड द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट। और हम Q पॉइंट से 3 वैल्यूज़ ट्रांजिस्टर की डिफ़ाइन करते हैं। Q पॉइंट को ट्रांजिस्टर को हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को हम Q पॉइंट के हवाले से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। Q पॉइंट हमें 3 चीज़ें देता है, IC, VCE एंड IB। तो और इसी तरह हम, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट रजिस्टर की वैल्यूज़ लगा लेते हैं, जो आज के लेक्चर में जिसका मैंने जिक्र तो किया लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं हमने अभी तक डिस्कस किए, वो मैं अगले लेक्चर के लिए उन रजिस्टर वैल्यूज़ को मैं इंट्रोड्यूस करूँगी इन माय नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस वाज द समरी ऑफ व्हाट वी डिड टुडे, व्हाट वी टॉक्ड अबाउट टुडे। सो आई look forward to seeing you again for my next lecture. Next lecture में मैं इसी DC analysis को continue करूँगी, but with a variety of other factors that I'll introduce into the circuit. और उस एक factor को मैंने जिक्र भी कर दिया last point में, that we shall introduce some resistors as well in the input and output circuit as well. Okay, thank you so much indeed for being attentive and patient, and we will be back again for more examples and exercises on the same topic, which is DC analysis of the bipolar junction transistor. Allah Hafiz.